Hi everyone, welcome to Unacademy. How's your board preparation going on? So in this lecture I'm going to tell you very important MCQs on power sharing. We will be doing every chapter like this. We will be discussing 15 important MCQs on every chapter on the same channel. So make sure that you subscribe this channel and you can also share these videos with your friends, okay, with the friends who are going to appear for the term 1 board exams from this November. Okay, so power sharing is the first chapter of your civics. Okay, it's a very short chapter. The important things from this chapter which you have to remember are the types of power sharing, horizontal power sharing, vertical power sharing. Why is it important? Next thing is, why do we need power sharing? Okay, one simple definition of power sharing is when power is shared between different groups or different organs of the government. This is called power sharing. Then there is another thing called the concept of decentralization. So these are the few things which you have to, which you have to study from this chapter called power sharing. Let's start with the MCQ. So I'll tell you how are we going to go about this video. I will be telling you the questions. I'll give you 15 questions. You have to write down your answer in your notebooks. Please sit with a paper and a pen. You have to write down your answers, your 15 answers in your notebook. After that, I will be telling you the answers. You need to match. Okay, I will give you the answer key. Then you need to match your answers. And you also have to tell me your score in the comment section below. Okay, so this is a game. Let's see who wins. So there will be 15 questions. आपको 15 questions के answers लिखने हैं. Answer की से match करके you have to tell me your score. Out of 15 आपको कितने marks मिले. This will also help you to realize कि आपका preparation किस chapter में कितना हो चुका है. And which is the chapter you need to focus a lot more on. Okay, so let's start with power sharing. But before that, the ones who are watching my video for the first time or the ones who are entirely new on this channel itself, let me brief you about all of this. So my name is Muskan. I teach social science on Unacademy and I am a plus educator. So we have plus courses on our application called Unacademy. There are two types of classes. One is a special class which is free of cost for everybody, and another one is a plus class for which you have to pay some fees. In this plus session, we give you superb content. We teach you the past year papers. We give you directions on how to write answers in your exam, how to attempt the MCQs, how to in fact attempt the MCQs you have no idea about. So we tell you all of these things ताकि आपका exam बहुत अच्छा जाए. तो plus की classes के अंदर we also cover your entire syllabus. And for class 10 specially, we have started a crash course on plus. So if you like this lecture, by the end of the session you will decide कि इस lecture पसंद आया या नहीं, Unacademy से पढ़ना है या नहीं. And trust me, so many of you are going to purchase this plus platform after I tell you the features of this, because this is so amazing and it is going to help you a lot in your exam prep. So in this crash course we will be teaching you the entire syllabus of your term 1 very quickly, type of a revision. Alright, so if you want to attend the special classes first, then you can use my referral code, which is MS Live 10. It's very easy to remember this code. Muskan Sehgal MS Live and 10. Okay, you can unlock any special class with the help of this referral code. And if you are about to purchase the Plus platform, you will also get 10% discount with the help of this referral code. Okay, alright. Ready? Shall we start with the questions? I think we should. Okay. So here is your first question. Let's first understand the question, then you write your answer in your paper. Question number 1. Which of the following is an example of horizontal sharing of power? I will be also teaching you a little bit concepts. Just question में I feel कि तुम्हें पता होना चाहिए. तो horizontal power sharing. Always remember कि horizontal is like this. This line is horizontal line and this is vertical.
तुमने साइंस में पढ़ा होगा वर्टिकली अपवर्ड्स, तो उससे याद रखना, मैंने मेरे टाइम पे ऐसे याद रखा था, वर्टिकली अपवर्ड्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज दिस लाइन. तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इनमें से कौन सा है? पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. बाय ऑर्गन्स वी मीन, व्हाट डू वी मीन? थिंक अबाउट इट. वी मीन लेजिस्लेटिव, executive, judiciary. Okay, power sharing between different organs of the government. Okay, this is a repeated one, ignore this. Between different levels of government or between different political parties. What do you think it is? Come up with your answer. Do you have your answer now? ओके, फॉर द वंस जिनको आंसर नहीं मिल रहा है या फिर जो डाउट में है कि ये आंसर होगा या नहीं, लेट मी गिव यू अ स्मॉल हिंट. हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के अंदर एवरीबॉडी वुड हैव इक्वल पावर, ठीक है, लेकिन वर्टिकल के अंदर देयर विल बी वन बॉस. वर्टिकल में द पर्सन एट दिस पोजीशन, पोजीशन 1, 2, 3 and 4, the person at this position would have more power. Now I think you've got your answer. Okay, moving on to question number 2. Who elects the community government in Belgium? बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन इलेक्ट करता है? By the leader of Belgium, the citizens of the whole country, people belonging to one language community, or the community leaders of Belgium. It's very simple. You have 10 seconds. Think about the question and write down your answer. Just do not write A, B, C, D, okay? Write the entire sentence. Community government in Belgium. Alright. Question number 3. The word ethnic signifies. The word ethnic signifies. Come on, this is not your ethnic attire. This is something different from that. A careful calculation of gains and losses. Avoid conflict between opposite groups. Social division on shared culture or different religion. Ethnic groups, you must have heard about it. Ethnic groups. This is a small test, guys. Come on, write down your answer. You have 10 seconds. Okay, it's done. Next question. Power sharing is. This is a very important question. I'm telling you, past year papers में ये question बहुत बार आया है. CBSE ने ये question काफ़ी बार दिया है. और इस बार तो because you only have objective type papers, इस बार ये question आने के chances बहुत ज़्यादा हैं. Power sharing is the very spirit of democracy. Separation of power at different levels. Please take care of this word, huh? Focus on this word, separation. Just keep it in your mind. System of checks and balance, or a type of balancing power. There is one exact line in your NCERTs जहाँ से ये question बना है और ये पेपर में आने के chances बहुत ज़्यादा हैं. 10 seconds. Write down your answer. हम लास्ट में देखने वाले हैं correct answers, और ध्यान रखना you have to comment below your score. आपने मुझे स्कोर बताना है. Okay. Next, power sharing is desirable because it helps. क्यों चाहिए हमें power sharing? Why do we need power sharing? क्या फायदा होगा इससे? To generate awareness among people, लोग aware हो जाएंगे. Power share करने से लोग aware हो जाएंगे. To reduce possibilities of conflicts, conflicts नहीं होंगे. मतलब अगर मैंने क्लास में एक बच्चे को मॉनिटर बनाया for a week, फिर मैंने नेक्स्ट वीक मॉनिटर फिर चेंज कर दिया. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम शेयरिंग पावर, कि आज इस बच्चे के पास है, कल किसी और बच्चे को दे दिया. सो दैट नॉट वन स्टूडेंट हैव द पावर ऑफ द मॉनिटर फॉर द एंटायर ईयर. तो मैंने एक हफ्ते के लिए कि आज इसके पास पावर है, आज इसके पास पावर है, और लेट्स से कि मैंने एक बच्चे को
कुछ पावर दिया, एक बच्चे को कुछ पावर दिया, तो ऐसे मैंने पावर शेयर कर दिया, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, बच्चे आपस में लड़ेंगे नहीं, and they won't feel jealous of one person who is the monitor of the session. Another next option is to increase percentage of voters. अगर पावर शेयर करेंगे तो वोटर्स ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा लोग वोट करना शुरू कर देंगे. टू इंक्रीज प्रेशर ऑन गवर्नमेंट. अगर पावर शेयर्ड होगी, अलग अलग ग्रुप्स के पास में होगी, तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता रहेगा. दिस क्वेश्चन हैज अ डायरेक्ट आंसर. ये तो गलत नहीं होना चाहिए, इसका तो बहुत डायरेक्ट आंसर है हमारे पास. I believe you all have written your answers in your notebooks. Moving on to the next question. A system of checks and balances mean horizontal distribution of powers. Checks and balance. Okay, let me give you one example. Let's say there are two students, student named A and student named B. ठीक है, तो I give the notebook of student B to student A कि आप इसकी नोटबुक चेक करो, और स्टूडेंट ए की नोटबुक दी स्टूडेंट बी को कि आप इसकी नोटबुक चेक करो. नाउ दे बोथ हैव दिस फियर कि यार अगर मैंने उसके मार्क्स ज़्यादा काटे तो वो भी मेरे मार्क्स ज़्यादा काट देगा. तो वो लोग क्या करेंगे, दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू गिव अ जस्टिफिएबल मार्क्स टू ईच अदर. एकदम सही मार्क्स देंगे एक दूसरे को कि वो मेरे मार्क्स ज़्यादा ना काटे. दिस इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस. यहाँ पर बना चेक क्रिएट हुआ, और बैलेंस कैसे बना कि दोनों लोग अब कोई भी गलती नहीं करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपना बेस्ट दे करके ऑनेस्टली वो पेपर चेक करके देंगे. तो इसी तरीके से ऐसा ही सेम चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हमारा गवर्नमेंट भी बनाता है. हमारी कंट्री में भी गवर्नमेंट के ऊपर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के ऊपर चेक्स और बैलेंस का सिस्टम है. सो दिस मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, federal division of power, or to put a check on the exercise of unlimited powers of the organs of government by maintaining a balance of power among various institutions. We will call this question easy one. Again, this also has a direct answer. Okay, I think it's done. Next question. A belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority is. अगर हम ऐसा मान रहे हैं कि जो भी कम्युनिटी मेजॉरिटी में है वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है, सो द कम्युनिटी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इट वांट्स टू डू, और माइनॉरिटी क्या कर रही है उससे कोई लेना देना ही नहीं है. तो ये किस तरीके का सिस्टम है? इज इट पावर शेयरिंग, central government, majoritarianism, community government? Power sharing is a relatively very easy chapter, I'm telling you. You have 10 seconds. Okay. Next question. Sinhala was recognized as the only official language by which act? अब ईयर्स पर भी क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ईयर्स से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं सिविक्स के अंदर, लॉज से रिलेटेड. सिन्हाला को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, दिस एवरीबडी नोज, बट कौन सा एक्ट था? एक्ट ऑफ 47, 1965, 1958 और 1956. दीज क्वेश्चंस आर नोन एज फैक्चुअल क्वेश्चंस. अब इसके अंदर आपका गेस वर्क काम नहीं करेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा ऑब्वियसली. आई बिलीव यू हैव रिटन योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash is referred to as social division based on culture and language. Based on culture and language. Can it be ethnic group, community, federal or cultural group? Super easy. Done? Next. Belgium constitution was amended dash times between 1970 and 1993.
ये तो इट्स लाइक द फेमस क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. मतलब इतनी बार पूछा जाता है ना ये क्वेश्चन तो, कि बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार उन्होंने अमेंड किया था. क्योंकि बेल्जियम एक ऐसी कंट्री थी बेटा जिन्होंने इतना अच्छे से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. वहाँ पर भी अलग अलग ग्रुप्स थे. कहीं पर फ्रेंच की मेजॉरिटी है, कहीं पर डच की मेजॉरिटी है, उनके सेंटर में उनका जो कैपिटल है वहाँ पर अलग मेजॉरिटी है, पूरी कंट्री में अलग मेजॉरिटी है. स्टिल दे केम अप विद अ ब्रिलियंट प्लान, अ ब्रिलियंट कॉन्स्टिट्यूशन की सारी कम्युनिटीज एक साथ रहती थी. देयर वाज अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द कम्युनिटीज. तो उसके लिए बेल्जियम ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बार अमेंड किया. अब वो बहुत कितनी बार है ये आपको बताना है. Next question, what is the official language of Sri Lanka? I think I've already answered this question. ये तो मैंने तुम्हें आंसर दे ही दिया. तमिल, तमिल and Sinhala, Sinhala और हिंदी. Okay, Hindi can not be your answer. Now you are left with just 3 options. लिखा? नोटबुक में लिख लिया आंसर? I believe लिख लिया होगा. Next question, which community was rich and powerful in Belgium? अब पूरी कंट्री बेल्जियम में कौन सा कम्युनिटी अमीर और पावरफुल था? फ्रेंच, जर्मन, डच और नन. When did पंचायती राज सिस्टम become constitutional entity? पंचायती राज सिस्टम एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी, लाइक इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में कब हुआ, कौन से ईयर में होने लगा? 1991, 92, 95 और 96. अगेन वन फैक्चुअल क्वेश्चन. पंचायती राज सिस्टम से एक क्वेश्चन तो आएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी आ सकता है कि पंचायती राज सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी किस ईयर में बना, ये आ सकता है. विच पार्ट टॉक्स अबाउट पंचायती राज सिस्टम, ये क्वेश्चन भी आ सकता है. Which of the following community is in majority in Sri Lanka? Obviously अगर उनकी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है तो वही कम्युनिटी मेजॉरिटी में होगी. तमिल, हिंदू, सिन्हाला और बुद्धिस्ट. व्हाट इज अ कोएलिशन गवर्नमेंट? कोएलिशन गवर्नमेंट तब बनती है जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती. गवर्नमेंट बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट बाय डिफरेंट रिलीजन्स, मतलब हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सबने मिलकर के गवर्नमेंट बनाया. गवर्नमेंट बाय डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट. डन? Shall we move on? Okay, so these were the 15 questions. Now I'm going to tell you the answers of these 15 questions and then you have to mark it as correct or incorrect. Then at the end of the video, you need to calculate your marks and tell me your score in the comment section. Done? Okay. You have to tell me your score, huh? That's the deal. Are you ready to see the answers? दिल की धड़कनें किस किस की तेज़ हो रही हैं कि क्या आंसर है यार, मेरे कितने मार्क्स आएंगे, ये चैप्टर तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, ये चैप्टर तो बहुत आसान है. ओके, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग. द करेक्ट आंसर इज ऑर्गन्स. मैंने ऑलमोस्ट आपको इसका हिंट दे दिया था. ऑर्गन्स कैसे होगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल है. सो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एट द सेम लेवल. हॉरिजॉन्टल मीन्स एट द सेम लेवल. ठीक है. अगर वर्टिकल होता तो क्या होता आंसर? अगर वर्टिकल होता तो डिफरेंट लेवल्स, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. किस किस का करेक्ट हुआ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी तुम देखना, तुम लोग ना सबकॉन्शियसली ऐसे जब करेक्ट होगा तो ऐसे इतना बड़ा टिक जाएगा, जब इनकरेक्ट होगा ना तो ऐसे छोटा सा क्रॉस. इट हैपेंस. जब हम लोग स्कूल में थे तब तो ये बहुत करते थे. हम जो सही है उस पर बड़ा सारा टिक लगाएंगे, जो इनकरेक्ट है ना साइड में छोटा सा क्रॉस. कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में कौन इलेक्ट करता है? देखो, ये तो बहुत ही बेकार ऑप्शन था. बाय द लीडर ऑफ बेल्जियम. लीडर कैसे ही इलेक्ट करेगा? इलेक्ट करना है तो बहुत सारे लोग होने चाहिए ना, वोट करके इलेक्ट होता है. तो इट कैन नॉट बी द लीडर ऑफ बेल्जियम. सिटीजंस ऑफ द होल कंट्री, तो फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? सिर्फ गवर्नमेंट ही कह देते, ये भी नहीं हो सकता.
अगेन बेटा देखो, सी और डी आपके पास में 2 ऑप्शंस थे जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे. एक तो है कि लैंग्वेज कम्युनिटी. अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होता चैप्टर के बारे में तो तुम ये चीज़ समझ जाते कि लैंग्वेज के बेसिस पर इन लोगों ने गवर्नमेंट बनाया था. तुम्हारा आंसर सी होगा. डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगेन कम्युनिटी लीडर्स कितने को जाएंगे? 10 लीडर्स. वो लोग गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट कर सकते हैं पूरा? तो पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी. The word ethnic signifies social division based on culture. Ethnic. Culture के basis पे social division को बोलते हैं ethnic group. Power sharing is the very spirit of democracy. Okay? System of checks and balance नहीं होता. हम सिर्फ power share कर रहे हैं फिलहाल. Balancing भी नहीं, separation भी नहीं. It is the very spirit of democracy. Although all of these things are connected to power sharing, but then create a sentence. Power sharing is separation of powers at different levels. What can you understand from this? A vague sentence. Power sharing is the very spirit of democracy. ये question please थोड़ा सा ध्यान से रखना. मैं दोबारा बता रही हूँ कि बहुत important है. पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल क्योंकि अवेयरनेस तो कैसे ही क्रिएट करेगा बेटा, प्रेशर भी नहीं क्रिएट कर सकता और वोटर्स के परसेंटेज तो नो कनेक्शन एट ऑल. द करेक्ट आंसर इज टू रिड्यूस पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में यू हैव एब्सोल्युटली जीरो आइडिया, तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देन द लॉन्गेस्ट वन विल बी योर आंसर इन 90% ऑफ द केसेस. 90% केसेस में जो सबसे लंबा वाला आंसर है ना, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर. सो ये सबसे बड़ा वाला ऑप्शन भी यही था और चेक्स एंड बैलेंसेस को एक्चुअली एक्सप्लेन भी यही कर रहा है. दिस इज योर आंसर. I believe that the majority community कनेक्ट कर लेते. बहुत आसान था. Next, Sinhala was recognized. Factual question. Act of 1956. याद रखना, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन. करेक्ट आंसर इज एक्ट ऑफ 1956. We have already done this question. Social division based on culture and language is called ethnic group. जिसका पहले वाला क्वेश्चन सही हुआ था उसका ये वाला क्वेश्चन भी करेक्ट हुआ होगा. कितनी बार अमेंड किया था बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन? 4 बार अमेंड किया था. इसको भी ध्यान रखना, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देर आर सम क्वेश्चंस विच आर जस्ट पैरामाउंट. इतने इंपॉर्टेंट है कि पेपर में तुम्हें दिख जाएंगे. वैसे तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने तुम्हें इस लेक्चर में करवाए हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है पावर शेयरिंग से, बट स्टिल ये वाले कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो 4 times इज योर करेक्ट आंसर. ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका इज सिन्हाला. मेजॉरिटी कम्युनिटी भी यही थी. Which community was rich and powerful in Belgium? It was French. पंचायती राज सिस्टम आया था 1992 के अंदर. You need to tell me in the comment section which part talks about पंचायती राज system. Which part of the Indian Constitution talks about पंचायती राज system? Which of the following community is in majority? Again, अगर पहले वाला क्वेश्चन आपका करेक्ट था सिन्हाला लैंग्वेज वाला, तो ये भी करेक्ट होगा. That was सिन्हाला community. What is a coalition government? जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाई तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके गवर्नमेंट बनाते हैं, उसे कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट. ओके, सो दीज वर द आंसर्स. नाउ टेल मी योर स्कोर. अभी के अभी कमेंट करके ज़रा बताओ कि कितने मार्क्स आए. अगर बेटा आपके मार्क्स इसके अंदर 15 में से 12 से भी कम आए हैं ना, आई वुड सीरियसली रिकमेंड यू टू फोकस ऑन दिस चैप्टर, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आसान थे. आप आसानी से 15 और 15 ले सकते थे, फिर भी अगर आपके 3 मार्क्स कम हो गए हैं देन यू नीड टू प्रिपेयर.
प्रिपेयर करने में अनअकैडमी इज ऑलवेज देयर, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आप डाउट सेशन में हमसे पूछ सकते हो। हम लोग जो हमारा एप्लीकेशन है वहाँ पर स्पेशल क्लासेस रखते हैं, आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हो। आप यहाँ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, और मैं तो आपको 10% डिस्काउंट के लिए कोड भी बता रही हूँ, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम तुम्हें बहुत सारे लेक्चर्स के वीडियोस देंगे, लाइव लेक्चर्स होंगे, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी। सो इन केस यू फील कि यार लाइव लेक्चर के टाइम पे तो टाइम नहीं है, या मुझे खुद का पढ़ना है, या मेरा कोई एग्ज़ाम है, या मेरा स्कूल है, या फिर मुझे तो रिकॉर्डिंग फिर से देखनी है, आई वॉन्ट टू अटेंड दैट लेक्चर अगेन, और आई वॉन्ट टू स्टडी एट 12 AM, या मुझे अर्ली मॉर्निंग 6 AM पढ़ना है, अब इस टाइम लाइव क्लास कैसे होगा? यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग्स। वैसे तो टीचर्स लेते हैं एग्जाम टाइम में आधी आधी रात तक क्लासेस, बट स्टिल यू कैन वॉच रिकॉर्डिंग्स। सब लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं। अगर आपने अभी तक स्पेशल क्लासेस नहीं अटेंड करी, आप स्पेशल क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। करना क्या है कि एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, गेट स्टार्टेड, आप अपना नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करो, क्रिएट योर ID, फॉर एग्जाम्पल आई राइट मुस्कान, देन माई email address, then my state of residence, continue। अब हमने आपके लिए एक ऐसा इंटरफेस बनाया है विच इज़ कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल। आप कस्टमाइज कर सकते हो इसको। सिलेक्ट करो 6 to 12, क्लास 10, क्लास 10 में पढ़ रहे हो ना, तो क्लास 10 इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश, किस लैंग्वेज में आपको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल दिस लेक्चर वॉज इन इंग्लिश, आई वॉज स्पीकिंग लिटिल बिट इन इंग्लिश एंड देन लिटिल बिट इन हिंदी, सो इंग्लिश कैन ऑल्सो बी योर ऑप्शन। Apart from this, one very important, I would say this is like, you know, the best gift you could ever have, Unacademy Emerge। अब एग्ज़ाम से पहले ना यार देखो, सबको टेंशन होती है मेरा पेपर कैसा जाएगा, बोर्ड एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं। आई विल टेल यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मेरे पहले बोर्ड एग्ज़ाम्स थे ना, आफ्टर एवरी लाइक 10 मिनट्स मेरा पेपर है कल, मेरा पेपर है कल, पेपर कैसा जाएगा, पेपर कैसे करते हैं, बोर्ड का पेपर कैसे आता है, ठीक है। ऑल्दो वी हैव बीन अटेम्प्टिंग एग्जाम्स टिल 9th स्टैंडर्ड, इतने सालों तक हमने पेपर दिए हैं, बट बोर्ड्स का एक अलग ही खौफ होता है, नहीं तो वो खौफ तुम्हें ना रहे। आधी चीज़ें तो हम ना इस डर में ही भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। मैं तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्लास 9 का मैं एक चैप्टर का नाम भूल गई थी कि वो विलेज पालमपुर है। इतनी टेंशन थी मुझे, बोर्ड्स की नहीं पर फिर भी एग्जाम्स की। मैं क्लास 9 में विलेज का नाम भूल गई थी। तो तुम ऐसा कुछ ना करो, इसके लिए हमारे पास है अनअकैडमी एमर्ज। इसमें ना बेटा हम आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री, यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस, आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा एवरी वीक, संडे और सैटरडे और संडे। आप वो मॉक टेस्ट देना, फिर हम आपको डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट देंगे कि आपने कैसा परफॉर्म किया, आप इसमें क्या बेटर कर सकते थे, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे, और आपको बताएंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। AIR, ऑल इंडिया रैंक, ये भी मिलेगा। सैटरडे को होता है साइंस का टेस्ट और मैथ्स का टेस्ट होता है संडे को। ये आपको इसके लिए एनरोल करना है ना अगर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो इस वीडियो का, आपको लिंक मिलेगा। एंटर दिस रेफरल कोड MSLive10, फ्री में एनरोल कर लो और अटेम्प्ट करो। एनरोल करना भी फ्री है, एग्जाम देना भी फ्री है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेना भी फ्री है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एब्सोल्युटली फ्री। तो प्रैक्टिस करो, किस चीज़ का वेट है, ठीक है। जस्ट यूज दिस कोड ताकि आप अनलॉक कर पाओ बिल्कुल फ्री में, MSLive10। तो हमारी स्पेशल क्लासेस पूरा दिन प्लेटफॉर्म पे चलती हैं। वंस यू क्रिएट योर ID, आप स्पेशल क्लास अटेंड करो। इट्स सेम लाइक द प्लस क्लास। डिफरेंस क्या है कि प्लस में हम डिटेल में आपको पूरा चैप्टर कराएंगे, स्पेशल क्लास इज अ डेमो कि प्लस में कैसे पढ़ाई होती है। तो हमारे पास में यहाँ पर ये इंटरफेस है, वेयर यू कैन टेक्स्ट, वेयर यू कैन सेंड मैसेजेस। यहाँ पे आप पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। वी विल ऑल्सो क्रिएट अ लीडर बोर्ड फॉर यू। यहाँ पर आप डाउट्स पूछ सकते हो। सो गिव एवरीथिंग हियर। Now this is something new on Unacademy known as Winners Week। पूछो और जीतो, इतना आसान काम, मतलब तुम्हें पढ़ाई करने का गिफ्ट मिल रहा है। ऐसा यार हमारे टाइम में अगर होता ना, we would have been the happiest generation, I'm telling you। देखो पूछो और जीतो में करना क्या है, सिर्फ 10 डाउट पूछने हैं आपने। आप हमारा ऐप डाउनलोड करो, वहां पे ना आस्क डाउट करके एक फीचर है, ठीक है। आस्क डाउट करके एक फीचर है, वहाँ 10 डाउट पूछो। 15 से लेकर 21 तक वैलिड है, ध्यान रखना, एक हफ्ता है।
15 से 21 तक वैलिड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12 तक कोई भी बच्चा कर सकता है। 10 डाउट पूछने पर तुम्हें 15 दिन का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। इमेजिन करो कि तुमने 17th को भी अगर तुम जीत जाते हो बेटा, 17 तक भी अगर तुमने 10 डाउट पूछ लिए तो एग्जाम डेज में यू हैव 15 डेज ऑफ फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन। Isn't that amazing? एक बार ही प्लस मिल गया, तुम्हें अच्छा लगा, अगर तुम्हें तो फ्री में मिल रहा है अच्छा तो लगेगा ही। इतने सारे बच्चों ने आई हैव सीन पर्सनली कि इतने स्टूडेंट्स प्लस से पढ़ाई करते हैं ना, तो उसके बाद में तुम अपना परचेज कर सकते हो। यू विल हैव वन फ्री डेमो ऑफ प्लस। किसी को नहीं मिलता ऐसे, एवरीबडी हैज टू पे फॉर दैट, बट आपको तो सिर्फ 10 डाउट पूछने हैं। यू गाइस आर सो लकी। तो फटाफट से अपने 10 डाउट्स पूछना। 15 से लेकर 21 तक वैलिड है आस्क डाउट फीचर के अंदर। दिस इज द विनर्स वीक। आर यू द विनर? क्या क्या फीचर्स है इस आस्क डाउट की, कभी मर्जी पूछो। ऐसा नहीं है कि सुबह 10 to लेकर 5 तक ही पूछो, नहीं, कभी मर्जी। 24/7 वी अंडरस्टैंड, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल, है ना। कभी भी पूछो और फ्री है, कोई पैसे नहीं देने, बिल्कुल फ्री है। और अच्छे वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे तुम्हें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। मैथ्स के तो एग्जैक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं एक्सपर्ट्स ने। इंस्टेंट और एक्यूरेट सॉल्यूशंस तुम्हें मिल जाएंगे। होमवर्क में भी हेल्प ले सकते हो, तो जल्दी से पूछना 10 डाउट्स एंड 1 फ्री डेज ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। करना कैसे है ये देखते हैं अभी। सबसे पहले आप गो टू डाउट्स एंड सॉल्यूशंस फीचर ऑन योर होम स्क्रीन। आपकी होम स्क्रीन पर आपको ये फीचर दिखेगा, आस्क अ डाउट। ठीक है, क्लिक ऑन आस्क अ डाउट एंड अपडेट योर डाउट इमेज। अगर आपको कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है, आप अपना इमेज यहाँ पर अपलोड कर दो। इस तरीके से आपने क्वेश्चन अपलोड कर दिया, क्रॉप कर दो ताकि वो इमेज का क्वेश्चन ही जाए। फिर सब्जेक्ट सिलेक्ट करो कि आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी किस चीज़ का पूछा था। और अनलॉक कोड तो अब तक तुमको याद हो ही गया होगा। क्या है अनलॉक कोड? MS Live 10। गाइस दीज आर द न्यू बैचेस। देखो 15 नवंबर से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। पावर पैक बैच एंड साइंस, मैथ्स एंड SST, टर्म 2 किक स्टार्ट बैच, ये सब बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। यू नीड टू एनरोल इन दिस बैचेस। अगर आपको लग रहा है कि ये देखो क्रैश कोर्स है क्लास 10 के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बैच भी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार अभी प्रिपरेशन नहीं हुई या आई एम फीलिंग वेरी नर्वस, कैसे जाएंगे मेरे एग्जाम्स, गो फॉर दिस। आप ये बैचेस में एनरोल कीजिए। कोड तुम्हारे पास है फ्री 10% डिस्काउंट के लिए। अमेजिंग चीज़ बता दूँ, एक हमारे पास रेजर हैंड फीचर भी है जिससे यू कैन एक्चुअली अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन टॉक टू द एजुकेटर्स। बच्चों का फेवरेट है ये। लाइव होमवर्क हेल्प आपको मिलेगा विद हेल्प ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक में 4 फीचर्स एक्स्ट्रा है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि प्लस लेना है या आइकॉनिक लेना है। दिस इज द प्राइस लिस्ट। आप डिसाइड करो बेटा, जितना बड़ा प्लान आप लोगे उतना कम प्राइस मिलेगा। 10th का लेने पर 11 और 12 की क्लासेस भी आप देख सकते हो, उस अकॉर्डिंग लेना। आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद 18 मंथ्स। रेस्ट इज योर चॉइस। जो प्लान आपको लगे कि हम अफोर्ड कर सकते हैं वो प्लान आप लेना। ये कोड जरूर लगा लेना ताकि तुम्हें डिस्काउंट मिले। बेसिकली 10,000 का प्लान तुम्हें 9,000 में मिलेगा। So I'll see you in the next class and probably in the live session on the same channel। इस सेम चैनल पर मैं आपकी 2 मैराथन्स लेने वाली हूँ 1.5 आवर्स के, जिसके अंदर हम बहुत सारे MCQs करेंगे, रैपिड फायर पर MCQs करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हमारे सोशल साइंस पहला एग्जाम तो अच्छा जाना चाहिए ना। पहला एग्जाम अच्छा जाएगा तो वी विल बी मोटिवेटेड फॉर द अदर एग्जाम्स ऑल्सो। सो प्लीज रिमेंबर दिस रेफरल कोड MS Live 10। डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट बिलो योर स्कोर। कितने मार्क्स आए आपके आउट ऑफ 15। एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे और लेक्चर्स भी आने वाले हैं। बाय बाय।